Hello students, welcome to my class. Students ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 8 ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਸਿਗਨਲਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਟਿਊਮਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਟਿਊਮਰ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਵੂੰਡ ਵਿਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਐਨੀ ਵੂੰਡ ਵਿਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੂੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ it is also a danger signal of cancer. Third one is any wound not healing, any wound not healing for long period. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। फोर्थ है परसिस्टेंट इंडाइजेशन, लंबे समय तो इंडाइजेशन है सानू। परसिस्टेंट इंडाइजेशन मतलब खाना खा रहे हैं, हजम नहीं हो रहा है गया, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ डेंजर सिग्नल ऑफ कैंसर। कैन बी और रैपिड चेंजेस इन अपीयरेंस, फॉर्म एंड ग्रोथ ऑफ सम warts on the body। बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਮੀਨਸ ਸਮਾਲ ਹਾਰਟ ਗਰੋਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੱਸਾ ਜਾਂ ਮੋਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਾਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। Sixth one is persistent changes in bowel movement। bowel movement ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ persistent ਲਗਾਤਾਰ changes ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। that can also be a danger signal of cancer। seventh is persistent hoarseness in voice or persistent coughing। परसिस्टेंट होर्सनेस इन वॉइस, आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਮਾਪਨ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। परसिस्टेंट कफिंग है, खांसी हैगी है, एंड परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। swallow ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ठीक है, तो वो भी हो सकता है या इंडिकेट है या कोई कि थ्रोट कैंसर हो सकता, गले का कैंसर हो सकता है। एंड एट्थ डेंजर सिग्नल हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट, भार दे विच, वेट दे विच कमी आ रही है, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ या कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहा हैगा या ना कोई स्ट्रिक्ट वर्कआउट कर रहा हैगा या, ठीक है, ना कोई एक्सरसाइज कर रहा, ना डाइटिंग कर रहा या फिर भी ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਨਾਈਨਥ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ और एक्सेसिव बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ
डेंजर सिग्नल हैगा या। एंड 10th वन इज अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर। अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर। अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर का मतलब की आ, थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है 98.7 डिग्री तो लैके 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेंपरेचर हो रहा है एंड विच लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। सो ये स्टूडेंट्स 10 डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर हैगे हैं। हुण ये जिहड़े डेंजर सिग्नल्स हैगे आ दे आर नॉट ऑलवेज ड्यू टू कैंसर बट सिग्नल फॉर अर्ली डायग्नोस। हुण जे इन्हां दे विचों कोई भी सिग्नल्स हैगे साडी बॉडी कोई भी सिम्पटम शो कर रही है तो ਇਹਦਾ मतलब जरूरी नहीं है कि सानू कैंसर ही होएगा, कोई होर भी कारण हो सकता है पर सानू थोड़ा जिहा सुचेत हो जाना चाहिए है ताकि जे साडी बॉडी इन्हां विचों कोई भी सिग्नल शो कर रही हैगी तो असी अर्ली डायग्नोस असी जल्दी जिहड़े हैगे डॉक्टर कोल जाके अपना डायग्नोस करा लीए, डिटैक्ट करा लीए कि हाँ हो हैगा या कैंसर ताकि जे की हुंदा है कि अर्ली स्टेज दे विच जे इहदा पता लग जाए फर्स्ट स्टेज दे विच तां जिहड़ा हैगा इलाज जिहड़ा है वो संभव हैगा या। पर मोस्टली की हुंदा है कि असी की करदे हां कि जे डेंजर सिग्नल्स कोई शो हो रहा तो असी नज़रअंदाज कर दिंदे हैगे आ तां उहदे नाल की हैगा या कि कैंसर इन्ना वध जांदा है और लास्ट स्टेज दे विच पता लगदा है जदों इहदा इलाज होना जिहड़ा हैगा वो संभव नहीं हुंदा। So student, this is about the danger signals of cancer. Now we will discuss the detection and diagnosis of cancer. Detection or diagnosis of cancer. कैंसर जिहड़ा हैगा ओहदा किवें ओहनूं डिटेक्ट कीता जांदा है और या किवें ओहदा डायग्नोस कीता जांदा है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज एट द लेटर स्टेजेस मोस्ट ऑफ द कैंसर बिकम इनक्यूरेबल। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी हैगी है कैंसर की क्योंकि लेटर स्टेज दे विच वो इनक्यूरेबल हैगा। इनक्यूरेबल मीनस ओहदा इलाज संभव नहीं हैगा। हुण किहड़े-किहड़े मैथड्स दे नाल कैंसर जिहड़ा ओहनूं डिटेक्ट कीता जांदा हैगा by first one is by blood and bone marrow test. Blood and bone marrow test. Blood and bone marrow tests are done for increased cell count in case of leukemia. Leukemia blood cancer ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ blood test और bone marrow test जिहड़ा आ वो कीता जांदा आ। एंड सेकंड वन इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। बायोप्सी दे विच की कीता जांदा हैगा या कि जिस जगह ते मतलब सस्पैक्टेड हैगा या कि हाँ इत्थे कैंसर हैगा या उत्थों सस्पैक्टेड टिश्यू तो जिहड़ा पीस हैगा या वो कट्टिया जांदा हैगा। कट इन अ सैक्शन सस्पैक्टेड टिश्यू तो पीस जिहड़ा हैगा वो लिया जांदा या उहनूं सैक्शनस दे विच कट्टिया जांदा उहनूं स्टेन कीता जांदा या ठीक है और उहनूं अंडर द माइक्रोस्कोप जिहड़ा उहनूं स्टडी कीता जांदा हैगा वो सस्पैक्टेड टिश्यू बाय द पैथोलॉजिस्ट जिहड़ा ये सारा कुछ स्टडी करदा उस उहनूं पैथोलॉजिस्ट कहंदे हैगे आ ठीक है। पैथोलॉजिस्ट की करदा आ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟਡ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਕਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਪੈਪਸ ਟੈਸਟ ਫॉर ਸਰਵੈਕਸ ਕੈਂਸਰ। ਸਰਵੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈਗਾ ਆ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਰਵੈਕਸ। ਔਰ ਸਰਵੈਕਸ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੈਟਸ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, CT scan and MRI. X-ray, CT scan and MRI are used to detect the cancer of internal organs। ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ X-ray, CT scan ਜਾਂ MRI ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है स्टूडेंट, तुसी CT स्कैन की फुल फॉर्म जड़ी है वो लिख सकते हो, दैट इज नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI जड़ा हैगा या ओदी फुल फॉर्म हैगी आ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। X-ray, CT scan and MRI scans are used to detect the cancer of internal organs like kidneys and pancreas। इन्हां दे कैंसर ਨੂੰ डिटेक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। एंड फोर्थ मैथड यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज्ड एक्स-रे टू जनरेट आ। एक्स-रे यूज किया जाता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3D इमेज ऑफ द इंटरनल टिश्यू। इंटरनल टिश्यू ਦੇ 3 डायमेंशनल इमेज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक्स-रेज आर यूज्ड इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंड फिफ्थ मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर इज रेजोनेंस इमेजिंग। रेजोनेंस इमेजिंग विच की किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जड़ा है उन्होंने यूज करके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू दे विच कोई पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैगियां उन्होंने डिटेक्ट करने दे लई नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जड़ा है वो यूज किया जाता है इन रेजोनेंस imaging method। and sixth one is monoclonal antibodies। monoclonal antibodies ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨਸ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ यूज कीतियां जांदियां टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ certain cancers। and seventh one is endoscopy। seventh method used to detect the cancer is endoscopy। ਹੁਣ एंडोस्कोपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ। Gastroscopy is used to detect stomach cancer। stomach cancer ਨੂੰ डिटेक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ gastroscopy method use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and laparoscopy method is used to detect the cancer of pelvic region। pelvic region ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ डिटेक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कैंसर दा ट्रीटमेंट इलाज किवें कीता जांदा हैगा या कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर केड़े केड़े मैथड्स दे नाल कैंसर दा ट्रीटमेंट कीता जांदा है। फर्स्ट वन इज सर्जरी। सर्जरी ऑपरेशन करके ट्यूमर्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। ट्यूमर्स जेडे हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਫੈਲਣ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ट्रीटमेंट। पर ये सारे कैंसर्स के लिए ये वाला मैथड जिहड़ा है यूज नहीं होंदा। जिवें ब्लड कैंसर हैगा या ल्यूकीमिया नोन एज ब्लड कैंसर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ या सर्जरी मैथड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ यूज नहीं ਹੁੰਦਾ। सर्जरी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ब्लड कैंसर ਦਾ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सैकेंड वन इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी भी कह सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਰੀਡੀਏਟਡ ਬਾਈ ਲੈਥਲ ਡੋਜ਼ਸ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਥਲ ਡੋਜ਼ਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ट्यूमर सैल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਥਲ ਡੋਜ਼ਸ ਆਫ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲ and it gives good results in case of skin, lip, mouth and cervix cancer. Skin, lip, mouth and cervix cancer. इन्हां कैंसर्स दे विच जिहड़ा रेडिएशन थेरेपी हैगी आ बहुत अच्छा रिजल्ट दिंदी है एंड 80% ऑफ जिहड़े कैंसर पेशेंट्स हुंदे आ उन्हां दा ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी दे नाल कीता जांदा हैगा आ बट दिस ट्रीटमेंट कॉज ग्रेट डैमेज टू नॉर्मल टिश्यूज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू कैंसरस टिश्यूज। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी दे नाल 80% कैंसर पेशेंट्स दा ट्रीटमेंट कीता जांदा है पर इस ट्रीटमेंट का एक नुकसान है कि जो ट्यूमर सैल्स से लैथल डोजेस ऑफ एक्स-रेज पाइया जांदियां हैगियां आ तां जिहड़े ओहदे ट्यूमर सैल्स दे नेड़े दे नॉर्मल सैल्स हैगे आ उन्हां नॉर्मल सैल्स जिहड़े हैगे उन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एंड थर्ड मैथड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दे विच की हुंदा है कई कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हुंदियां आ ठीक है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स several chemotherapeutic drugs are used to kill the tumor cells पर इन्हां ड्रग्स दे जिहड़े कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैगियां यूज्ड इन कीमोथेरेपी इन्हां दे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैगे जिवें हेयर लॉस एंड अनीमिया। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स दे की साइड इफेक्ट्स हैगे हेयर लॉस एंड अनीमिया। तुसीं देखिया ही होएगा ਜਿਹੜੇ कैंसर पेशेंट्स ਦੀ कीमोथेरेपी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੀਮੀਆ ਮੀਨਸ HB ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ कीमोथेरेपी ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ कीमोथेराप्यूटिक ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ कीमोथेरेपी ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 mercaptopurine, second is 6-aminopterin, third one is vincristine, fourth one is vinblastine।
ਇਹ 4 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ 6 ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ 6 ਅਮਾਈਨੋਪਟੈਰਿਨ ਵਿਨਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਐਂਡ ਵਿਨਬਲਾਸਟਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਐਂਡ ਵਿਨਬਲਾਸਟਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ ਡੀ, ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ डी एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये कुछ कीमोथेरेपैटिक ड्रग्स हैगियां यूज्ड इन कीमोथेरेपी। उस तो बाद स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड हैगा या यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर दैट इज इम्यूनोथेरेपी। ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ ਲਾਈਕ ਐਲਫਾ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ। ਐਲਫਾ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ they are used to activate the immune system and help in destroying the tumor। ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲਫਾ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ। Fifth method used for in the treatment of cancer is hormonal therapy। इस method विच की किता जांदा है कि जेड़ा हार्मोन कैंसर कॉज कर रहा है जेड़ा हार्मोन कैंसर कॉज कर रहा है उन्होंने किसी होर हार्मोन दे नाल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो हार्मोन जेड़ा है जेड़ा ट्रीटमेंट दे लिए यूज होया वो कैंसर कॉजिंग हार्मोन जेड़ा है उन्होंने न्यूट्रलाइज कर देवे। जिवें एग्जांपल हैगी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स दे विच हुंदा है, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यूज किया जाता है टू कंट्रोल द ब्रेस्ट कैंसर। और जदों लेडीज दे विच मीनोपॉज आउंदा है, मीनोपॉज मीन्स जदों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तां उन्हां दी बॉडी दे विच जिहड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जदों लेडीज दे विच फीमेल्स दे विच मीनोपॉज हो जाता मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता तां एस्ट्रोजन हार्मोन दा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिहदे नाल ब्रेस्ट कैंसर दे जिहड़े हैगे आ वो चांसेस बढ़ जाते हैं। कि जे फीमेल दे विच ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तां टेस्टोस्टेरोन मेल दा हार्मोन है उन्होंने यूज करके जिहड़ा हैगा ब्रेस्ट कैंसर दा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह ही यदि एक और एग्जांपल है प्रोस्टेट कैंसर। मेल्स दे विच हुंदा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओदा कैंसर हो जाए तां उहनूं किवें कंट्रोल किया जाता है बाय एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स दे विच हुंदा है, ओदा ट्रीटमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर दे लई प्रोस्टेट कैंसर दे लई किया जाता है ते ब्रेस्ट कैंसर दे ट्रीटमेंट लई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिहड़ा यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स इस इज द हार्मोनल थेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कैंसर। Preventive measures, prophylaxis, preventive measures of cancer। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
फर्स्ट वन इज अवॉइड टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, टोबैको की हुंदा सिगरेट दे विच टोबैको है, तंबाकू हैगा आ। सो टोबैको स्मोकिंग नू अवॉइड करना चाहिदा हैगा आ, क्योंकि इहदे नाल लंग कैंसर माउथ कैंसर हुंदा है। ते जे असीं चाहुंदे हैगे अपने आप नू लंग कैंसर माउथ कैंसर तो बचाउणा तां टोबैको स्मोकिंग जिहड़ी उहनूं अवॉइड करो। सैकेंड हैगा आ अवॉइड एक्सैसिव एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के प्रति कि साडी स्किन ज़्यादा एक्सपोज ना होवे, उस चीज़ तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि सोलर रेडिएशन जिहड़ियां दे कॉज स्किन कैंसर कॉज करदियां। थर्ड हैगा अवॉइड अर्ली सैक्सुअल एक्टिविटी और हैविंग सैक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स जिहड़े हैगे उन्हां दे नाल सैक्स नहीं करना चाहिए और अर्ली सैक्सुअल एक्टिविटी भी अवॉइड करनी चाहिए हैगी है, ताकि क्योंकि इन्हां दे नाल जिहड़ा है वो सर्वैक्स कैंसर हुंदा। ठीक है, मैं इत्थे फर्स्ट वन लिख दिंदी हैगी आ अवॉइड टोबैको स्मोकिंग, क्योंकि इहदे नाल लंग कैंसर माउथ कैंसर हुंदा आ। ठीक है, सेकंड वन अवॉइड एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन, क्योंकि इहदे नाल स्किन कैंसर हुंदा आ। थर्ड वन अवॉइड अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, और सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि ये नाल सर्वैक्स कैंसर हुंदा है। अवॉइड कॉन्टैक्ट रेगुलर कॉन्टैक्ट विद फिजिकल इरिटेंट्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फिजिकल इरिटेंट्स। ਇਹਦੀ एग्जांपल हैगी है कि ਜਿਹੜੇ कश्मीरी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗੜੀ, कश्मीरी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗੜੀ KANGR ਹੈ, ਇਹਦਾ यूज ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ स्किन कैंसर हो सकता हैगा आ। एंड फिफ्थ वन इज ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए हैगा आ, फ्रूट वेजिटेबल्स। ठीक है, और सिक्स्थ इज रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट, रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए हैगे टू डिटेक्ट कैंसर इन द अर्ली स्टेज। जिवें ब्रैस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करवानी चाहिए हैगी है। ठीक है, ताकि अर्ली स्टेज के विच पता लग जाए तो वह ट्रीटमेंट जिहड़ा है वो हो सके। सैवंथ वन इज एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, अपना बॉडी वेट जिहड़ा है उन्हें मेनटेन करना चाहिए आ। एट्थ वन इज अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि जिहड़ा अल्कोहल हैगा इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग लिवर कैंसर। एंड नाइन्थ वन इज गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दे जिहड़ी हैगी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए हैगी है, क्योंकि इन्हां दे नाल जे वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो चांसेस हो जाते हैं कैंसर दे, जिमें हिपेटाइटिस बी हैगा आ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हैगा आ लिवर कैंसर के चांसेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि जे ਇਹਦੀ वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो इट कैन लीड टू cervix cancer and other genital cancers. So students, this is all about cancer. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Thank you so much for watching.